السلام علیکم۔ الیکشن 2024 میں خوش آمدید۔ فیصلہ پاکستانیوں کا، یہاں پر سب سے پہلے ہم شامل کریں گے ٹاپ سٹوریز۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر آزاد جموں کشمیر کے قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ شانہ کھڑے ہونے کے عہد کی تجدید کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، قائد اعظم محمد علی جناح نے جموں کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیتے ہوئے اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ یہ دعویٰ محض بیان بازی نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ پاکستانی اور کشمیری اٹوٹ رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ جغرافیائی قربت، مشترکہ تاریخ اور عقیدہ اس بندھن کے اہم عناصر ہیں۔ ہمارے خوشی اور غمی کے تہوار ایک ہیں، ہمارے دل ایک ہی تال پر دھڑکتے ہیں اور ہماری رگوں میں ایک ہی خون رواں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جموں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ ہم جموں کشمیر تنازع کے اہم فریق ہیں۔ ہندوستان جموں کشمیر کے عوام کی خواہشات کے برخلاف جموں کشمیر پر یک طرفہ طور پر کوئی حتمی حل مسلط نہیں کر سکتا۔ کشمیر کوس کے لیے ہمارا عزم پختہ ہے۔ جناب اسپیکر، کشمیر ہمیشہ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی اہم ترین ترجیحات میں سے ایک رہا ہے، جو ایک غیر متزلزل قومی اتفاق رائے کی عکاسی کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے تمام طبقات اور ہمارے قومی ادارے ہمارے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں اور پوری دنیا میں کشمیریوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق جموں کشمیر تنازع کے پرامن حل کے لیے ہر طرح کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت کرنے کا فرض سمجھتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے متعلقہ بین الاقوامی فورمز پر مستقل طور پر کشمیر کوس کی وکالت کی ہے۔ یہ ایک ایسا عزم ہے جو اب بھی غیر متزلزل ہے۔ اس عزم کے پیچھے پاکستان کے تقریباً 4 ارب لوگوں کی مرضی شامل ہے۔ جناب اسپیکر، آج ہم جموں کشمیر کے ہزاروں مردوں، عورتوں اور بچوں کی قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ کشمیریوں نے جو قیمت ادا کی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ بھارتی قبضے اور جبر کے خلاف کشمیری لہو لہان ہو گئے لیکن جھکے نہیں۔ برٹش انڈیا میں مسلم اکثریتی ریاست ہونے کے ناطے جموں و کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ کشمیری عوام کی حقیقی امنگوں کو سازشوں، طاقت اور دھوکہ دہی سے پامال کیا گیا۔ کشمیری عوام کے وہ زخم آج بھی تازہ ہیں۔ جناب اسپیکر، آزاد جموں کشمیر کا علاقہ جہاں آج ہم جمع ہیں، بڑی قربانیوں اور جدوجہد کے بعد آزاد ہوا۔ 1947 میں جموں کے خطے میں مسلمانوں کے قتل عام کی دردناک یادیں ہمارے ذہنوں سے مٹ نہیں پائی ہیں۔ جموں کے شہداء وہ اولین ہر اول دستہ تھا جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ میں تحریک آزادی کے اسلاف کی حیثیت سے انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک بار پھر پاکستان کی بے پناہ حمایت کا یقین دلانا چاہتا ہوں۔ ہم ان کے حقوق کے تحفظ اور ان کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ہم ان کی ترقی اور خوشحالی کی جستجو میں ان کی مدد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ جناب اسپیکر، یہ بھارت ہی تھا جو جموں و کشمیر کے تنازع کو اقوام متحدہ میں لے گیا۔ اس خطے کی متنازع حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا کہ ریاست جموں و کشمیر کا حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کی سرپرستی میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے جمہوری طریقے سے کیا جائے گا۔ تاہم کشمیری عوام کو اب تک اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ بھارت کو استصواب رائے کے حوالے سے اقوام متحدہ، پاکستان اور سب سے بڑھ کر کشمیری عوام کے ساتھ اپنے پختہ وعدوں کا احترام کرنا چاہیے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے بھارتی دعوے کھوکھلے ہیں۔ بھارت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں کبھی متروک نہیں ہوتی۔ جناب اسپیکر،
मौजूदा हिंदुस्तानी क़यादत जम्मू और कश्मीर पर हिंदुस्तान के गैर कानूनी कब्ज़े को बरकरार रखने के लिए पहले की रवायत को जारी रखे हुए है। भारतीय क़यादत मासूम कश्मीरियों के ख़िलाफ़ अपने जाबिराना इक़दामात को अंजाम देने के लिए हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी और आरएसएस का ये इत्तेहाद बाज़मीर कश्मीरियों को बिला वजह तशद्दुद का निशाना बना रहा है। हिंदुत्व के जहरीले नज़रिए ने कश्मीर पर ऐसा जुल्म ढाया है जितना पहले कभी नहीं हुआ। आज भारतीय मकबूजा कश्मीर एक खुली जेल से मुशाबहत रखता है। कश्मीरी खौफ और हिरास के माहौल में जी रहे हैं। मकबूजा इलाके में मीडिया पर पाबंदियां हैं, इनके सियासी रहनुमा और कारकुन जेलों में बंद हैं, इनकी ज़मीनें ज़ब्त की जा रही हैं, इनकी सकाफ़त पर हमला हो रहा है, हिरासतें, तशद्दुद और मावराए अदालत कत्लेआम हो रहे हैं, आज़ादी पसंद कश्मीरियों की जायदादें हथियाई जा रही हैं, भारतीय फोर्सेस सख्त कवानीन के तहत इस्तिस्ना के तहत काम कर रही हैं। गुज़श्ता 35 सालों के दौरान 96,000 से ज़ायद कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। हज़ारों ख़वातीन को हरासानी का सामना करना पड़ा। पैलेट गन को बड़े पैमाने पर अंधा करने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। हज़ारों कश्मीरी मर्द जिनमें जवान हैं हरासतों और जिबरी गुमशुदगियों का शिकार हो चुके हैं। इन तमाम मज़ालिम का ख़ात्मा होना चाहिए। आलमी बरादरी को इन ज़्यादतियों के मुरतकब अफराद का मुहासबा करना चाहिए। फ़लस्तीन के हालिया अलमनाक वाक़यात के बाद दुनिया के अमन पसंद अवाम का ज़मीर ज़िंदा हो गया है। मैं दुनिया को बावर कराना चाहता हूँ कि कश्मीर में जो कुछ हुआ वो किसी इंसानी अलमियत से कम नहीं। भारत की दिहाइयों की बर्बरियत के दस्तावेज़ी सबूत मौजूद हैं। आलमी बरादरी को बेदार होना चाहिए और इस बर्बरियत का नोटिस लेना चाहिए। आलमी बरादरी को कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और खूनरेज़ी पर भारत को जवाबदेह बनाना चाहिए। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता 76 बरसों में भारत ने जम्मू और कश्मीर पर अपने नाजायज़ कब्ज़े को मज़ीद मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ़ हरबे आज़माए हैं। ताहम कश्मीर को इंडियनाइज़ और कश्मीरियों को इनकी अपनी सरज़मीन से बेख्तियार करने की एक तेज़ मुहिम 5 अगस्त 2019 से ज़ोरों पर है। इस दिन भारत ने IIOJK की खुसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया। इसे नई दिल्ली के बराह रास्त कंट्रोल में ले लिया गया और इसे 2 नाम नहाद यूनियन टेरिटरीज़ में तकसीम कर दिया गया। मकामी आबादी को दिए गए खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद से हिंदुस्तानी हुकाम ने IIOJK के आबादियाती ढांचे और सियासी मंजरनामे को तब्दील करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं, जिनमें इंतखाबी हलकों में रद्द-व-बदल, वोटर फहरिस्तों में गैर कश्मीरियों को शामिल करने की इजाज़त देना, कश्मीर से बाहर के लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ज़मीन और जायदाद की मलकियत से मुतालिक नए कवानीन जारी करना शामिल है। ये कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी कानून की सरियन खिलाफ वर्जी हैं, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, इंसानी हुकूक़ के मुआहदों और चौथे जेनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी है। जनाब स्पीकर, भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर की हैसियत से मुताल्लिक 11 दिसंबर 2023 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत से भारतीय इनकार की जानिब ताज़ा तरीन कदम है। ताहम ऐसे फ़ैसलों के ज़रिए कश्मीरी अवाम की हकीकी उमंगों को मजरूह नहीं किया जा सकता, जिनका कोई जवाज़ नहीं है। कश्मीरियों ने इस फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया। एक ब्रेक शामिल करते हैं।
इलेक्शन मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर शहबाज शरीफ और मरीम नवाज कल यूहन्नाबाद लाहौर में जलसे आम से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून मीनार विंग के सदर सेनेटर कामरान माइकल की जानिब से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, तो शहबाज शरीफ और मरीम नवाज कल यूहन्नाबाद लाहौर में जलसा आम से खिताब करेंगे। वहां पर पहुंचेंगे मुस्लिम लीग नून मीनार विंग के सदर सेनेटर कामरान माइकल की जानिब से इस्तकबाल की तैयारियां कर ली गई हैं। वकास गौरी हमारे साथ हैं। जी वकास, बताइएगा इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारियां की जा रही हैं? मुस्लिम लीग नून ने इजलास, बल्कि उनका वहां पर एक जलसा है। आज बिल्कुल मुस्लिम लीग नून लाहौर का कल लाहौर में जो है वो पावर शो होगा। मुस्लिम लीग नून जो है वो कल शाम 6 बजे यूहन्नाबाद चौक पर जलसा करने जा रही है। इस हवाले से कामरान माइकल जो है वो जलसे की तैयारियां कर रहे हैं। पार्टी राय के मुताबिक कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ जो है वो भी जलसे से खिताब कर सकते हैं, जबकि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज भी जलसे में मौजूद होंगे। इस हवाले से मिनॉरिटी विंग जो है वो जलसे की तैयारियां कर रही है और पार्टी कायदीन का भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा, ऐसा कहना था कामरान माइकल का। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं NA 127 और PP 160 की। अवामी कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गई है। टूटी गलियां और सड़कें, जगह जगह खड़ा गंदा पानी और पीने के साफ पानी का ना होना इस कॉलोनी का सबसे बड़े मसाइल हैं। मकीनों ने आने वाली हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। मजीद तफसीलात हम जानते हैं लाहौर से अशरफ मेहताब की इस रिपोर्ट में। अपने मसाइल हैं, मगर बाज आबादियां वाकई मसाइलिस्तान बनी हुई हैं। लाहौर में फेरोजपुर रोड के अकब में जनरल अस्पताल की अवामी कॉलोनी भी ऐसी ही आबादियों में शामिल है। अवामी कॉलोनी की गलियां और सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। मकीनों को पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी और गंदे पानी के जगह जगह खड़ा होने से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 1.5 लाख के करीब तो आबादी है हमारी यूनियन काउंसिल की, तो उनको इस तरह के मसाइल जो हैं वो वसाइल से महरूम किया जा चुका है। पानी के ट्यूबवेल की अशद ज़रूरत है, जो मसाइल है हमारा। और दूसरी हमारी ये है कि गैस की प्रॉब्लम है हमें। मकीनों का कहना है कि जैसे ही इलेक्शन आते हैं वोट लेने वाले उम्मीदवार गलियों में नजर आने लगते हैं। वोट देने की सूरत में मसाइल हल करने के वादे करते हैं और चले जाते हैं, मगर आज तक मसाइल हल नहीं हुए। सब्जी बाप खा के टुर चल रहा है। कमरा बन गई ने, पानी सिवरेज पै गया है, ट्यूबवेल लग गया है, मस्जिद नूं थां देती, असीं मस्जिद नूं सड़क बना देंगे। और कर कीता अज तक कख नहीं छाड़ा किसी ने। गैस आती ही नहीं है, बिल पूरे आते हैं। गैस तो आती ही नहीं है ना, सिलेंडर यूज करते हैं, गैस तो बहुत कम आती है। साडियां गलियां पानी ना भरियां पईयां गंदे ना, पीने वाला पानी साडे कोल कोई नहीं। बच्चे साडे विच डुब डुब लंघदे आ। आज तुहानूं सर्वे करा देने गली दा भी। अवामी कॉलोनी के मकीनों ने अपने मसाइल अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने पर नियो न्यूज की टीम का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया। गाड़ियों पर फूल निछावर किए और नियो न्यूज के हक में नारे भी लगाए। कौमी असेंबली का हल्का NA 111 में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। उम्मीदवार इंतखाबी वादा और नारों से वोटर्स की सपोर्ट लेने में मसरूफ है। नून लीग के बटजीत ताहिर और आजाद उम्मीदवार अरशद शाही में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। हल्के में मसाइल के भी अंबार लग चुके हैं। सीवरेज के नाकिस इंतजामात हैं। पीने के साफ पानी समेत दीगर मसाइल से लोग परेशान हैं। हल्के की सूरत हाल से मुतालिक हम मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा नियो कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा। इंतखाबात 2024 के करीब आती है। हल्का NA 111 में सियासी जो गहमा गहमी है वो भी शुरू हो गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जो उम्मीदवारान हैं वो नए वादों के साथ वोटर्स के पास पहुंच रहे हैं। इस हल्का से अब तक 6 मरतबा चौधरी मोहम्मद बटजीत ताहिर जो है वो कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हो चुके हैं। इलाके के मसाइल के बारे में आवाम से जानते हैं कि इनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा सर जी यही बुनियादी मुतालबा कि जो बुनियादी मसाइल है ना, सीवरेज के मसाइल हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, ये ठीक होने चाहिए, ठीक है। और महंगाई में कमी हो। आम आवाम को तो इससे गर्ज है, उम्मीदवार कोई भी हो, ठीक है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी जैसा कि इनका कहना है कि उम्मीदवार कोई भी हो, इससे इनके कोई गर्ज नहीं है। और इनका यही मुतालबा है कि यहाँ पर इनके जो बुनियादी मसाइल है वो हल होने चाहिए। यहाँ पर गलियाँ बाजार जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं और जो इलाके के बेशतर रोड्स हैं वो खस्ता हाल हैं। तो धूल मिट्टी से शहरियों का भी बुरा हाल है। ना पीने के लिए साफ़ पानी है और ना ही सीवरेज का फाल सिस्टम है। जबकि लोड शेडिंग जो है बिजली और गैस की तवील है और ताजर जो है वो इन मसाइल से भी तंग हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची में कौमी असेंबली के हल्का NA
34 को जिला कोरंगी का अहम हलका समझा जाता है। इस हलके की हालत इज़ार गुज़श्ता अदवार में यहां से मुंतखब होने वालों की अदम दिलचस्पी को जाहिर करती है। NA 234 के अहवाल बता रहे हैं कराची से हमाद यूसुफ अपनी इस रिपोर्ट में। कराची का आबादी के हिसाब से तीसरा बड़ा और अहम जिला है। नई हल्का बंदियों के बाद NA 241 तब्दील होकर NA 234 बना दिया गया। 4 नशिस्तें हैं। ये हल्का गिलगित कॉलोनी, अब्दुल्ला शाह नूरानी, फिशरमैन चौरंगी, कोरंगी डबल रोड, बिलाल कॉलोनी, मेहरान टाउन से कयूमाबाद और इर्द गिर्द के इलाकों पर मुश्तमिल है। NA 234 के हल्के की आबादी 10 लाख से जायद है, जबकि रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,70,000 के करीब है। NA 234 के हलके में मसाइल का अनबार है। न ही फराहमी आब का कोई निज़ाम है और न ही नकासी आब का। जगह जगह कचरे के ढेर हैं और टूटी फूटी सड़कें गुज़िश्ता हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल रही हैं। सामने देख रहे हैं गटर का पानी यहाँ सालों साल खड़ा रहता है, इस पे कोई तवज्जो नहीं है। ये फन बोर्ड का एरिया है, फन बोर्ड कभी नहीं बोलता हमारा फंडिंग है, कभी बोलता हमारा वर्कर नहीं है। बच्चों का स्कूल है और यह कचरा कुंडी, लोग यहाँ कचरा फेंके जाते हैं। कई कई दिन होते हैं यहाँ से कचरा उठाते नहीं। साथ में ही मस्जिद है, नमाजी आते हैं। हम घरों में पानी पीने के लिए भरने के लिए कासिर हो रहे हैं, रात के 4-4 बजे तक जागते हैं। शहरी कहते हैं कि गुज़िश्ता 5 सालों तक सिर्फ अपने मुंतखब नुमाइंदों के दीदार को तरसते रहते हैं। जो सबसे बड़ा अलमिया है यहाँ का, कि यहाँ पे गटर का पानी जैसे आपको सामने दिख रहा है, यही गलियों की कंडीशन है, यही रोडों की कंडीशन है। और पानी तो तकरीबन यहाँ पे कोई 6-7 साल हो गए जो अभी तक आया नहीं है। इस हल्के में आम इंतखाबात 2018 में तहरीक इंसाफ के फ़हीम खान मुंतखब हुए थे। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ हमाद यूसुफ, न्यूज़ कराची। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। यार ये पंजाब हुकूमत का इंटरनल मामला है, आपस में बैठ के तय कर लेंगे। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आला पंजाब बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। गुजरावाला एक्सप्रेसवे मोटरवे लिंक का इफ्तिताह करने के मौके पर निगरान वज़ीर आला मौजूद हैं, जो कि मनाज़िर देखे जा सकते हैं। इस वक्त गुजरावाला में मौजूद है निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और मीडिया से गुफ्तगू की जा रही थी। एक ब्रेक शामिल करते हैं। सदर IBP आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जंग रहेगी, बर्बादी तक जंग रहेगी। आप ये बता दें सर, जब इमरान खान ने जुल्म डाल रहा है और हाल में दुनिया जो सी है वो खामोश है और दिन उसका जो जुल्म है वो बढ़ता जा रहा है। कश्मीरी हिमाचल को हम तो करते हैं, काम मिलेगी किस तरह होंगे? देखिए, हमें गैर रवायती तरीके जिस तरह OIC के सेक्रेटरी जनरल को मैं मुजफ्फराबाद पहली दफा लेके गया। अमेरिकन जो एम्बेसडर है वो रावला कोर्ट में मेरे घर में गए। जब वो दिल्ली में बैठे तो उन्होंने आज़ाद कश्मीर लिखा। जब दिल्ली में बैठते ही आज़ाद कश्मीर लिखा तो हिंदुस्तान तिल मिला उठा। हिंदुस्तान ने बहुत एहतजाज किया, लेकिन अमेरिका ने आज़ाद कश्मीर के लिए आज़ाद कश्मीर का लफ्ज़ वापस लेने से इनकार कर दिया। हमें गैर रवायती है कि ये 5 फरवरी पाकिस्तान 1990 से बना रहा है। मैं ये कहा करता हूँ कि पाकिस्तान सबके लिए लड़े, सबके गम करे, लेकिन हमारी बारी आई तो हमें कोई पूछे। ये मुसलमान ममालिक, इनको भी हमारे साथ 5 फरवरी बनाना चाहिए। जब ये हिंदुस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाएंगे तो यूरोपियन ममालिक में से भी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा।
इलेक्शन 2024 का मैदान सज चुका है। मसाइल का हल सिर्फ जमात इस्लामी है। पल्स कंसल्टेंट सर्वे में कराची वाले अक्सरियत की राय, जमात इस्लामी 19% के साथ कराची के वोटर्स की पहली तरजीह बन गई। आम इंतखाबात से एक हफ्ता कबल सर्वे में जमात इस्लामी कराची की मकबूल तरीन जमात करार पाई है। पीपल्स पार्टी 6% के साथ तीसरे और पीपल्स और MQM का 5% के साथ चौथे नंबर पर है। कराची के मसाइल को हल करने की सलाहियत रखने वाली लीडरशिप में हाफिज नईम 51% के साथ पहले नंबर पर है। सर्वे में मुस्तफा कमाल पर 9% और मुर्तजा वहाब पर 8% कराची वालों ने एतमाद का इजहार किया है। मजीद तफसीलात उबैद शाह की रिपोर्ट में जानिए। जमात इस्लामी की मकबूलियत में तेजी से इजाफा। प्लस कंसल्टेंट ने ताज़ा तरीन सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे 2 मराहिल में किया गया, जिसमें शहरियों की अक्सरियत हाफिज नईम के हक में नजर आई। सर्वे का दूसरा मरहला 30 जनवरी से 1 जनवरी के दौरान किया गया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी हुई, जो 24% से कम होकर 19% रह गई। पीपल्स पार्टी का 6% के साथ तीसरा, जबकि MQM का 5% के साथ चौथा नंबर है। सर्वे के मुताबिक सिर्फ 2.2% लोग नून लीग और तहरीक लब्बैक को वोट देना चाहते हैं। मसाइल के हल के लिए सबसे ज्यादा कोशिश में जमात इस्लामी 47% के साथ पहले नंबर पर है। बिजली के मसले को हल करने के लिए 48%, गैस की फराहमी के लिए 44% और स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए 40% ने जमात इस्लामी को वोट दिया। कराची के मसाइल को हल करने की सलाहियत रखने वाली क़यादत में हाफिज नईम 51% के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि मुस्तफा कमाल को 9% और मुर्तजा वहाब को 8% लोगों ने वोट किया। उबैद शाह, न्यूज़ कराची। सिर्फ इस बार मुझे मौका दें, कराची के चप्पे चप्पे की खिदमत करूंगा। बिलावल भुट्टो का कराची में रैली से खिताब। कहते हैं कि किसी और जमात के नुमाइंदे को मुंतखब किया तो वो अपने इलाके में 1 टके का काम नहीं कर सकेगा। ये तमाम सियासी जमातें जो हमारे मुकाबले करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नफरत और तकसीम का सियासत कर रहे हैं। इनको नफरत और तकसीम की सियासत करना है। हर कोई अपना चूरन भेज रहे हैं। मजहब की बुनियाद पे मेरा शहर तकसीम करना चाह रहा है, कोई लिसानियत की बुनियाद पे हमारा शहर को तकसीम करना चाह रहा है, कोई फिरकावारियत की बुनियाद पे हमारा शहर को तकसीम करना चाह रहा है। आप 8 फरवरी को तीर पे मोहर लगा के इन तमाम कुव्वतों को जवाब दें। सियासी सरगर्मियों में जहाज का इस्तेमाल। बिलावल भुट्टो जरदारी को इंतखाबी रैली में स्काईविंग के जहाज से पंफलेट गिराए जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आसमान से पंफलेट उड़ाने के लिए स्काईविंग से जहाज ले लिया गया। बिलावल भुट्टो के इंतखाबी रैली में मुख्तलिफ मकामात पर फजा पंफलेट में गिराए जाएंगे। मजीद तफसीलात आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो के इंतखाबी रैली के हवाले से नया जो सिस्टम है वो मुतारिफ करवाया जाएगा और पीपल्स पार्टी ने आसमान से पंफलेट्स उड़ाने के लिए स्काईविंग से जहाज ले लिया है। अब बिलावल भुट्टो के इंतखाबी रैली में मुख्तलिफ मकामात पर फजा में पंफलेट्स गिराए जाएंगे और जो जहाज है वो ले लिया गया है। सियासी सरगर्मियों में अब जहाज का इस्तेमाल भी शामिल कर लिया गया है। बिलावल भुट्टो के इंतखाबी रैली और अब नए अंदाज में होगी। स्काईविंग के जहाज से पंफलेट से गिराए जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने आसमान से पंफलेट्स उड़ाने के लिए स्काईविंग से जहाज ले लिया है। अब्दुल वली से हम जानते हैं। अब्दुल वली बताइएगा, बिलावल भुट्टो के इंतखाबी रैली में अब जहाज शामिल कर लिया गया है। चंद हीरोज रह गए हैं। इंतहाबी जो मुहिम है सियासी जमातों की उसमें मजीद तेजी आ गई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्क भर में रैलियों और जलसों के बाद जो है बाकायदा तौर पर इलेक्शन मुहिम में जहाज के इस्तेमाल का भी फैसला कर लिया गया है। जराये के मुताबिक जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की इंतखाबी रैली में जो है वो स्काईविंग के जहाज से आज जो है वो बाकायदा तौर पर कराची के मुख्तलिफ अजला में जो है वो पंफलेट गिराए जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो आसमान से पंफलेट गिराने के लिए जो है वो स्काईविंग से भी बाकायदा तौर पर उन्होंने जहाज ले लिया है। और इस हवाले से स्काईविंग एजेंसी से जब हमारी बात हुई तो उनका ये बताना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की इंतखाबी रैली में मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो आसमान से पंफलेट गिराए जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो और दीगर जो उनकी लीडरशिप है उनकी तस्वीर जो है वो पंफलेट पर मौजूद है। जी ठीक है अब्दुल वली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
तो आम इंतखाबात में 3 रोज बाकी हैं। एक तरफ इंतखाबी मुहिम उरूज पर है तो दूसरी जानिब सियासी जमातों में जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो ANP और कौमी वतन पार्टी के माबैन 4 सद्दा में 2 कौमी नशिस्तें NH-24 और 25 पर सीट एडजस्टमेंट हो गई है। KP में बड़े पैमाने पर सियासी इत्तेहाद के लिए कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। ताहम 4 सद्दा के अलावा सवात में JUI और मुस्लिम लीग नून, जबकि पेशावर में जमात इस्लामी और राह हक पार्टी के माबैन भी 2 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात हम जानते हैं न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे लिहाज अली से, जो कि इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं। जी लिहाज, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से बताइएगा। सद्दा से कौमी असम्बली के 2 हलकों NH-24 और NH-25 पर कौमी वतन पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट हुई है, जिसके तहत अवामी नेशनल पार्टी NH-24 पर आफ्ताब शेरपाओ के मुकाबले में अपनी उम्मीदवार को दस्तबरदार करेगी और NH-25 पर एमल वली खान के मुकाबले में कौमी वतन पार्टी अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करेगी। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में 5 सियासी जमातें जो खैबर पख्तूनख्वा की है, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून और कौमी वतन पार्टी, इनके माबैन राब्तों का आगाज़ हुआ था कि सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो ज़िली तंजीमें हैं उन्होंने इसकी शदीद मुखालिफत की, जिसके बायस चारसद्दा, मर्दान, सवात और दीगर कई इलाकों में इन 5 सियासी जमातों के माबैन एडजस्टमेंट न हो सकी। गुज़िश्ता रोज़ 2 सियासी जमातों ने एडजस्टमेंट की है। दोनों सियासी जमातों के मुकाबले में जो JUI की उम्मीदवार है वो इस वक्त इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार भी बाकायदा तौर पर इंतखाबी अमल का हिस्सा है। एडजस्टमेंट के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में हरीपुर में 1-2 सीटों पर एडजस्टमेंट हुई है। इसके अलावा सवात में जहाँ पर NH-2 और इसके अलावा जो PK-4 और PK-5 है वहाँ पर भी जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग के माबैन एडजस्टमेंट हुई है। शांगला में भी 1 सीट पर एडजस्टमेंट हुई है। लेकिन अमूमी तौर पर जो सीट एडजस्टमेंट का रुझान और उसके लिए जो इजलासों का सिलसिला शुरू किया गया था वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सियासी जमातों की जो ज़िली तंजीमों की मुखालिफत है उसकी वजह से नहीं हो सका। इस वक्त इंतखाबी माहौल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बाकायदा काफ़ी सरगर्म है। कल आखिरी दिन है इंतखाबी मुहिम चलाने की। रात गए तक तमाम सियासी जमातों ने जहाँ पर छोटे बड़ी जलसी की वहाँ पर कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला भी जारी रखा। इस वक्त सियासी जमातें जो हैं वो इंतखाबात के हवाले से पोलिंग एजेंट्स को हाथमी शिकल दे रही। ख़वातीन के पोलिंग एजेंट्स पर जो खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के दूर अफ्तादा इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी सियासी जमातों को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें तालीम याफ्ता ख़वातीन दस्तयाब नहीं। बाजोड़ में NA आज के उम्मीदवार रेहान सेफ पर हमले की फुटेज सामने आ गई। रेहान सेफ को चंद रोज कबल नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया था। फुटेज में 2 टारगेट किलर्स को रेहान सेफ पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। दोनों मुलजिमान भगदड़ का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। तो आपको बताते चलें कि बाजोड़ में NA आज के उम्मीदवार रेहान सेफ पर हमले की फुटेज सामने आ गई है। एक ब्रेक शामिल करते कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। डेरा इस्माइल खान के हल्का NH-44 में पीपल्स पार्टी, JUI और आज़ाद उम्मीदवार मैदान में है। हल्के की आवाम के क्या मसाइल और आवाम कैसा हुक्मरान चाहते हैं, न्यू की टीम पुकार NH-44 पहुंची और आवाम से उनकी राय जानी। एंकर पर्सन अनीला ज़का का प्रोग्राम मुलाहिजा कीजिए। मैं अनीला ज़का पाकिस्तानियों की पुकार बनके इलेक्शन नामा में आज डेरा इस्माइल खान में मौजूद हूँ। यह NH-44 का इलाका है। देखना है कि यहाँ पर तीर चलेगा, शेर धारेगा या आजाद उम्मीदवार इस तख्त पे राज करेंगे। आवाम क्या कहते हैं और उम्मीदवारों का जज्बा क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, किसको मुंतखब करना चाहते हैं? हम तो PTI को। अच्छा, वो तो अभी है नहीं मैदान में, तो किसको करेंगे? इंशाल्लाह आएगा। अच्छा चलें, जब आएगा देखा जाएगा। अभी फिल वक्त जो कैंडिडेट यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उनमें से किसको मुंतखब करना चाहते हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब। ठीक, किसको करना चाहते हैं? मौलाना फजलुर रहमान। ठीक, अच्छा चले, किसको जिताना चाहते हैं? जिताना तो हम जो है ना पीपल पार्टी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, बिलावल भुट्टो जरदारी। ठीक, आप किसको जिताना चाहते हैं? बताएं। बेनज़ीर भुट्टो, बेनज़ीर के बेटे को, बिलावल भुट्टो जरदारी को। चले जी। अच्छा, किसको मुंतखब करवाना चाहते हैं?
इंशाल्लाह ये रहा कि अल्लाह दे आप किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह 13 से अल्लाह दे हुक्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, किसको देना चाहते हैं? बिल खान। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देंगे, आपने तो कैप भी पहनी हुई है। सही, किससे उम्मीदें हैं? कुंडी साहब से। कुंडी साहब फैसल करीम कुंडी साहब से। जी आई। क्या उम्मीदें हैं आपको उनसे? बस अभी तक तो यहाँ बिजली का निजाम नहीं सीधा कर सके, सड़कें नहीं बना सके, आगे कर लेंगे, आपको उम्मीद है? बात बिजली पे नहीं होता है, अच्छा, किस पे होता है? बात नजरिए पे होता है। उनका नजरिया ठीक है। जी हाँ। चलो, ऑल द बेस्ट। किसके साथ उम्मीदें हैं आपको? तीर को बेनजीर को। बेनजीर को। बेनजीर तो है नहीं, बिलावल भुट्टो सरदारी। अस्सलाम वालेकुम जी। बेनजीर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मौलाना साहब। पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी। मौलाना साहब। अच्छा, कौन बेहतरी ला सकता है? बिलावल भुट्टो सरदारी। किससे उम्मीदें? मेरा खान। आपको किससे उम्मीद है? JUI। JUI से क्या उम्मीद है? कोई बात बताएं कि ये होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ। पाकिस्तान में तो बहुत सारे मसाइल है, ना हमारे DI खान का बताएं। खान में ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, किसी चीज का ना से। तो मौलाना साहब कर लेंगे सारा मसला हल। चले, बड़े प्रोजेक्ट पहुंचेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। किसको जितवाएंगे? इंशाल्लाह हम तो मौलाना फजल रहमान को जितवाएंगे। आवाम की बड़ी तादाद आप लोगों के सामने अपना नजरिया रख चुकी है। अब देखना ये है कि 8 फरवरी का दिन आवाम किसे मुंतखब करते हैं। तीर चलेगा, शेर धाड़ेगा, आजाद उम्मीदवार यहाँ पर इस तख्त पे राज करेंगे। लेकिन हमारी भी यही उम्मीद है कि जो भी तख्ते DI खां पे आए वो इस आवाम के लिए बेहतरी लाए, यहाँ पे रोजगार की फराहमी। फैसला आवाम का। मेरे साथ वकार अहमद खान मौजूद है जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं DI खान से, लेकिन इनके जितने भी सपोर्ट है, इनके पास जो यहाँ पे इनके हिमायतियों के पास जो झंडे हैं मुस्लिम लीग नून के हैं, यानी कि हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता हों। इन्हीं से बात करते हैं। वकार साहब, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, कांटेदार मुकाबला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मैदान में तैयार है, इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी आपको मात देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ मुझे ये बताइए कि DI खान का जो मैं हाल देख रही हूँ, अगर आप इक़्तिदार में आते हैं तो ये आपके दावे वादे ये सिर्फ बातें रह जाएंगी या ये सारा कुछ बदलेंगे भी सही आप? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी आप यहाँ तशरीफ़ लाई और मुनासिब समझा कि मुझसे भी बात कर लें। तो मेरा ताल्लुक़ जो है DI खान से आज का नहीं है, हमारा जनरेशन का ताल्लुक़ है। यहाँ पे मैं खुद यहाँ की पैदाइश हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। जैसे कहते हैं ना, डेरा आयांदनी जायांदनी थे आयांद है। समझाने की बात यह है कि मतलब ये है कि जितने भी लीडरान यहाँ पे मौजूद हैं, मैं किसी के बारे में गलत बात नहीं करूँगा। मौलाना साहब हमारे लिए बड़े काबिल इज़्ज़त और एहतराम रखते हैं, PDM के सदर भी हैं और उनकी वजह से हमारी टिकट भी रुक गई और इलेक्शन कैंपेन को भी उन्होंने बड़ा हमें धचका देने की कोशिश की। लेकिन रब करीम की ज़ात है जो मदद करती है। कुंडी साहब भी यहाँ पे हैं। आ जाते हैं आवाम की तरफ, आवाम आपको मुंतखब करके ले आती है। जो सड़कों का हाल है, यहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग है कि बिजली आती कम और जाती ज्यादा है। लोगों को ये पता है बिजली जाती है। ये आप इक़्तिदार में आते हैं, आपको तख्त DI खां मिलता है, तो इस आवाम के लिए ये जो आपको लेके आएंगे, इनके लिए क्या करेंगे या तख्त के बादशाह ही रहेंगे सिर्फ? मेरा जो मंशूर है ना वो अमन, खुशहाली, रोजगार और एजुकेशन और सेहत। मैं डेरा इस्माइल खान में 50,000 नौकरी दे रहा हूँ। 60 मेगावाट की वाफर बिजली पैदा होगी। जो मैंने हुकूमत पाकिस्तान से बात की, मैंने बात की मिनिस्टर से भी बात की, एनर्जी से भी, मिनिस्टर ऑफ वाटर पावर से भी, उन सबको कहा कि ये 60 मेगावाट मैं बिजली नेशनल ग्रिड पे देने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पे कि किसी भी डेरा इस्माइल खान के बासी के घर में बिजली का बिल नहीं जाएगा। तो इस बात पे हमारी हो रही, वो कहते हैं नहीं जी हमारे, होपफुली आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेंगे। जब रब की ज़ात आपके साथ हो तो होप फॉर द बेस्ट। फैसला आवाम ने करना है। 8 फरवरी फैसले का दिन है। पोलिंग स्टेशन पर आइए, वोट को जाया मत कीजिए, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है और अपने वतन को अमन का गहवारा हमने ही बनाना है। इस वक्त फैसल करीम कुंडी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। फैसल साहब, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, कांटेदार मुकाबला है,
क्या समझते हैं कि सियासी हरीफ कौन सा टक्कर दे सकता है आपको यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमेशा हर इलेक्शन में मुकाबला कांटेदार ही होता है और अपने हरीफ को बंदा कमज़ोर नहीं समझता। और यहाँ पर हमेशा शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ही हल्का रहा है। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे यहाँ से इलेक्शन लड़े थे, लेकिन यहाँ से हार गए थे। और उस वक्त मुफ्ती महमूद जो है वो यहाँ से जीते थे, लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म बने शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अली खान के लिए बड़े तरक्याती काम किए। तो सारी उम्र हमारा और JY का मुकाबला रहता है। मेरे वालिद साहब भी मौलाना फजल रहमान से जीते, मैं भी जीता, और बीच में PTI भी आ गई थी, उनका भी वो था। तो तीनों पार्टियों के वोट्स हैं। इस वक्त PTI पे मुश्किल वक्त है, उनके कैंडिडेट्स हैं नहीं, उनके पास निशान नहीं है, एब्सकॉन्डर है उनके कैंडिडेट। तो मुकाबला मेरा और मौलाना साहब का है, और मौलाना साहब जो है वो तलाशी गुमशुदा के इश्तिहारों के पीछे है। जब से उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा किए हैं तो वो इस हल्के से गायब हैं। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है और यहाँ पर हालात भी ख़राब है। आपने देख लिया, बर्फ़बारी तो है नहीं यहाँ पे, और हालात तो देखे तो मोहतरमा जब शहीद पाकिस्तान आई थी तो उस वक्त भी हालात ख़राब थे। जब एक लीडर बुज़दिल हो तो उसकी पार्टी क्या होगी? और लोगों को मैदान में आके कैंपेन, पार्टी के लिए बंदा कैंपेन करता है। हमने भी कैंपेन की। जैसे आपने बताया कि यहाँ पर आपका और मौलाना साहब का मुकाबला है, माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती आई है और आगे भी आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और अगर अवाम आपको तख्त पे बिठाती है तो हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी बेहतरी नहीं आई। इतनी बार आप लोग जीते हैं तो क्यों नहीं बेहतरी आ सकी, क्या वजह? और आगे मुस्तकबिल में अवाम को कैसे यकीन दिलाएंगे कि अब बेहतर होगा? देखें, एक दफ़ा मैं जीता हूँ और 10 साल तो यहाँ पे PTI की कीमत थी। और आप लोग जब वो सिटी से KP से बाहर होते हैं और आप लोग कहते हैं कि यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड बन गया और पेरिस बन गया और पता नहीं क्या कुछ बन गया, तो आपने देख लिया कि पेरिस भी बना या नहीं बना, या फ्रांस बना कि नहीं बना, या स्विट्ज़रलैंड बना कि नहीं बना। तो आपने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या पोजीशन है। आपके तो घर के पास आते हुए भी सड़क टूटी हुई है सारी। नहीं, ये प्राइवेट रोड है, इसमें तो खैर ऑफिशियल इसको नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्कुल प्रॉब्लम है। और यहाँ पर अभी भी 16 महीने जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे एजुकेशन के मिनिस्टर थे, और आपने अली खान की सड़कों का हाल देख लिया होगा। इससे पहले 10 साल जो है वो PTI की हुकूमत थी। यहाँ पर लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा है। लोड शेडिंग इसलिए ज़्यादा, देखें 22% लोड शेडिंग है, जो कि बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर नुमाइंदे नहीं है, पार्लियामेंट में नुमाइंदे नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जो पूरे पाकिस्तान को बिजली पैदा करके देता है और सबसे सस्ती बिजली पैदा करके देता है, और इस वक्त यहाँ पर 20-22 घंटे लोड शेडिंग है। इस तरह गैस की लोड शेडिंग है। वजह यह कि यहाँ पर जो है वो हमारे जो अफसरान हैं वो ज्यादती कर रहे हैं यहाँ पर लोगों से। ये इतना वो नहीं है कि आपकी पैदावार इतनी खत्म हो गई है, इतनी बंद हो गई है कि आप 22 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं। ये, और अगर आप बोले भी सही कि लोग चोरी कर रहे हैं, जब तक आपके एहलकार मुलविस नहीं होंगे तो उस तक चोरी नहीं हो सकती। तो हुक्मरान क्या कर रहे हैं? हुक्मरान तो शायद निगरान हुकूमत है। हमारे दौर में तो 22 घंटे नहीं, उससे पहले तो 22 घंटे लोड शेडिंग नहीं थी। अच्छा, ये अब हो रही है? अब हो रही है, पहले 22 घंटे लोड शेडिंग, और 8 फरवरी को इंशाल्लाह इलेक्शन होने दें। अगर इंशाल्लाह अगर हमें आवाम मुंतखब करती है फिर हम देखते हैं कितनी लोड शेडिंग है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी, DI खान में ख्वातीन के हुकूक और उनकी एजुकेशन के लिए आप मुस्तकबिल में क्या काम करेंगे? देखें, आज हमने ऐलान किया है कि जलसे में भी कि ख्वातीन की यूनिवर्सिटी कायम होगी यहाँ पे, क्योंकि कॉमन यूनिवर्सिटी शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफा है, पेशे की रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। ख्वातीन के हवाले से, उनकी फलाई मनसूबों के हवाले से अगर आप देखें कि इस वक्त 2 लाख ख़वातीन इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज हैं जो इन्होंने अभी हो रहे हैं। उसके अलावा जो है हमने ख़वातीन की जिनके मतलब स्कूल कॉलेज तो हैं, लेकिन हमें यूनिवर्सिटी करनी है ताकि वो यूनिवर्सिटी यहाँ पर हो, जैसे पीपल्स पार्टी ने अपने पिछले दौर में वुमेन यूनिवर्सिटी का क़याम किया है। हम वुमेन यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, वो भी हम बनाएंगे और ख़वातीन को इंशाअल्लाह रोज़गार पर लेके आएंगे ताकि ख़वातीन जो है वो इस जो 2024 है उसमें मर्दों के शाना बशाना और मुकाबले में रहे। ऑल द बेस्ट टू यू। अगर अवाम को मुंतखब करते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सिर्फ ये अपने वादे नहीं, दावे नहीं कर रहे, ये पूरे भी करेंगे। आप फैसला अवाम का है। 8 फरवरी को DI खान के तख्त पे अवाम किसको देखना चाहते हैं, वोट को ज़ाया मत कीजिए, वोट दीजिए। मैं फिर यही कहूंगी, और जो भी मुंतखब नुमाइंदा आप लाएं उससे सवाल जरूर कीजिए अगर वो अपने वादों की तकमील ना करे तो। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। NH44 के हवाला आपने जाना कि DI खान के तख्त पर किसको देखना चाहते हैं अवाम। अनीला ज़का ने हमें बताया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। शरीफ फैमिली शेर पर ठप्पा नहीं लगा सकेगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मॉडल टाउन के वोटर्स हैं। ज़राए के मुताबिक 8 फरवरी को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज समेत शरीफ फैमिली के दीगर अरकान शेर के बजाय उकाब के निशान पर ठप्पा लगाएंगे। N128 में मुस्लिम लीग नून की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट
है तो शरीफ फैमिली शेर पर ठप्पा नहीं लगा सकेगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मॉडल टाउन के वोटर्स हैं। जराये के मुताबिक 8 फरवरी को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज समेत शरीफ फैमिली के दीगर अरकान शेर के बजाय औकाब के निशान पर ठप्पा नहीं लगा सकेंगे। और NA 128 से मुस्लिम लीग नून की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट भी हो चुकी है। शादरा बेगम कोट में नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद हसन की जानिब से NA 117 के उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान और PP 145 के उम्मीदवार समीउल्लाह खान के एहसास में अशाये और कॉर्निंग मीटिंग्स का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर NA 117 से IPP के उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान और MP के उम्मीदवार समीउल्लाह खान के बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। अशाये में चौधरी समीउल्लाह, राना इकबाल, अफजल भोला, अहमद रास्क अली, मियां महमूद अहमद और समाजी शख्सियात चौधरी सुब सादिक ग्रुप ने खसूसी शिरकत की और 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में अपनी भरपूर सपोर्ट के साथ वोट की यकीन दहानी कराई है। आगे बढ़ते हुए बात करें कि जंग में सूबाई असेंबली के हल्का PP 127 में 3 उम्मीदवारों मुस्लिम लीग नून की राशिदा याकूब, मसरूर नवाज जंगवी और शेख मोहम्मद अकरम के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। हर उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के लिए मुहिम चला रहा है। शहर के बासी भी मसाइल का रोना रो रहे हैं। वोटर्स ने मसाइल के खात्मे के लिए अपने अपने उम्मीदवारों से तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं। हमारे नुमाइंदे सफदर वसीम इस वक्त वोटर्स के साथ मौजूद हैं। अहवाल हम सफदर वसीम से जानते हैं। जी बताइएगा। झांग में 7 सूबाई नशिस्तों पर इलेक्शन का दंगल सजेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झांग के हल्का PP 127 में और यहाँ पर भी जो है बड़ा इलेक्शन का दंगल सजने जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं। PTI की हिमायत याफ्ता शेख मोहम्मद अकरम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शेख राशिदा याकूब, इसी तरह जो है मौलाना मसरूर नवाज जंगवी जो है, इनका भी एक बड़ा नाम है यहाँ पर। और कैंपेन का जो उम्मीदवारों की जानिब से वो भी सिलसिला जारी है। यहाँ के मसाइल क्या हैं वो भी हम यहाँ से जो वोटर्स हैं उनसे जानते हैं। सर, यहाँ के कौन से मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि वो हल होने चाहिए? गलियों में पानी खड़ा हो जाता है जब बारिश आती है, और जब सीवरेज का निज़ाम ही ख़राब हो तो घरों में से जब पानी निकलता है नालियों में जाता है तो नाली बंद होने की वजह से घरों में भी खड़ा रहता है और गलियों में खड़ा रहता है। बच्चे बाहर निकलते हैं, वो इसी का शिकार बनते हैं, बीमार होते हैं और अस्पताल ले जाने में दिक्कत होती है। रोड पे रश बहुत होता है। बिल्कुल, जो उम्मीदवारान है वो भी कैंपेन जो है उनको वो ज़ोर शोर से जारी रखी हुई है। इसी तरह जो है वोटर्स जो हैं वो भी बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। वो भी अपने अपने उम्मीदवारों को कामयाब करवाने के लिए काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं और उन पर काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। और यहाँ के मसाइल भी आपने देखे हैं कि काफ़ी सारे मसाइल हैं जिनका जो है हल वो अभी होना बहुत ज़रूरी है। और सेवरेज का सबसे बड़ा इशू है जिसकी वजह से यहाँ के मकीनों को काफ़ी मुश्किलात का भी सामना है। लेकिन ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो सिलेक्ट होकर ऐवानों में बैठ कर जो है इस तमाम के मसाइल का हल निकालता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाहौर पुलिस की जानिब से इलेक्शन 2024 के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इलेक्शन के रोज मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस की बंदिश नहीं होगी। हवाई फायरिंग की इजाजत नहीं होगी। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ शाहिद रिजवी, DIG ऑपरेशन लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी के साथ मौजूद है। मजीद डिटेल्स हम उनसे जानते हैं। जी शाहिद रिजवी, बताइएगा। इलेक्शन 2024 जो है मार्का 8 फरवरी को होने जा रहा है। 72 घंटे से भी कम का अब जो है वक्त रह गया है। लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से अगर बात की जाए तो तमाम तर इंतजाम को जो है मुकम्मल कर लिया गया है। फुल ड्रेस रिहर्सल भी की जा रही है कि चेक किया जाए कि जो पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर पुलिस की नफरी और जो दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो कहां तैनात होंगे, कहां होंगे। इस हवाले से जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर कैमरे भी नस्ब किए जा रहे हैं। जो सिक्योरिटी इंतजाम क्या होंगे, नफरी कितनी लगाई जाएगी। मेरे साथ इस वक्त DIG ऑपरेशन लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी मौजूद हैं। हम इनसे जानिए, इसको बताइएगा। जी साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं बताता चलूँ जी कि हमने इलेक्शन के लिए बड़ा एक कम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान जो है वो तरतीब दिया है और उस प्रोग्राम में हमने 26,000 प्लस नफरी लगाई है, जो कि कभी भी लाहौर पुलिस की तारीख में इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट नहीं की गई। और इस डिप्लॉयमेंट को टीयर वाइज किया है
اور اس طریقے سے کیا ہے کہ مختلف ٹیئرز بنائے ہیں سیکورٹی کے. ہم نے اسٹیٹک ڈیوٹی بھی لگائی ہے جو پولنگ اسٹیشنز پہ ہوگی, پھر جو پولنگ بلڈنگز ہیں ان کے گرد پکٹس بھی لگائی ہیں. اس کے علاوہ سب سیکٹر جو موٹر سائیکل پٹرولنگ ہے جن میں سے ہر سب سیکٹر انچارج کے پاس 15 پولنگ اسٹیشن ہے وہ بھی ہے. پھر سیکٹر انچارج کے پٹرولنگ ہے جس کے پاس 25 پولیس اسٹیشنز ہیں. ہم نے بڑا کلیئر کیا ہے کہ جو کمیونیکیشن پلان ہے ویسے تو ہمارا آلٹرنیٹ کمیونیکیشن پلان تھرو وائرلیس موجود ہے, لیکن موبائل کی بندش یا انٹرنیٹ کی بندش کا نہ کوئی ایسا پلان ہے نہ ہی لاہور پولیس چاہتی ہے. ہم نے بڑا پراپر سیکورٹی کا, میں ایک چیز بتاتا چلوں, آپ نے موبائل کی بات کی کہ ہم پچھلے 1 ماہ سے سرچ آپریشنز بھی کر رہے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی کر رہے ہیں, سنیپ چیکنگ بھی کر رہے ہیں, پکٹنگ بھی کر رہی ہیں. سو ہم اس کو ہر طریقے سے, چاہے وہ کرائم کے متعلق ہو, چاہے وہ ٹیررزم کے متعلق ہو یا اوورال سیکورٹی کے متعلق ہو, اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے تمام کی تمام اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ سے نپٹنے کے لیے بھی ہم نے پراپر طریقے سے پچھلے 1 ماہ سے ساری تیاری کر رہے ہیں. جی بالکل. ڈی اے جی آپریشن لاہور سید علی ناصر رضوی کہتے ہیں کہ موبائل بندش یا انٹرنیٹ کے حوالے سے کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے اور نہ بھجوائی جائے گی. کسی بھی جماعت کے یا کسی بھی امیدوار کے حامی فائرنگ کریں گے بلا تفریق بلا امتیاز ان کے خلاف کارروائیاں بھرپور کی جائیں گی. جی مظفر گڑھ سے قومی اسمبلی کا حلقہ این 177 میں سیاسی پارا ہائی ہے. نون لیگ کے امیدوار شہر بانو بخاری اور پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار اور موسم علی جتوئی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. حلقے کی سیاسی صورتحال سے متعلق جانتے ہیں نمائندہ نیو ملک فیاض حسین سے. جی فیاض بتائیے گا. ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل جوتائی کے نوائی علاقہ جگی والے میں موجود ہیں. یہاں پر ملک بھر کی سیاسی گہمی عروج پر ہیں. اس وقت مسلم لیگ نون کی سید آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.